عزیز طلباء و طالبات، آپ کو میرا آج کی نشست میں خیر مقدم اور پیار برا السلام علیکم و آداب۔ آج ہم آپ کی نصاب میں شامل دوسرے سبق کے دوسرا سبق جسے آخری قدم کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے لکھا ہے، اس سبق کی آخری نشست یعنی اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، اس تعلیمی سفر میں آپ کی توجہ کی ہمیشہ سے طلبگار رہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ جو سبق ہم پڑھیں گے اسے آپ غور کے ساتھ سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ عزیز طلباء، پچھلی نشست میں جس طرح سے ہم نے سوال نمبر 5 تک آپ کی جو مشقی سوالات ہیں، سوال نمبر 5 تک ہم نے مکمل کیا، جس کا پہلا حصہ، پہلا پارٹ مکمل کرتے ہوئے آج اس کے دوسرے حصہ یعنی متضاد الفاظ سے ہم آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ سب کو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ درسی کتاب ہمیشہ رکھیں اور جس طرح سے درسی کتاب پر ترتیب وار جو ہے مشقی سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جانکاری میں مزید اضافہ کرتے رہیں۔ تو آئیے آج ہم سوال نمبر 5 میں جو اقتباس دیا گیا ہے اس میں چند الفاظ کا ذکر ہے، جس کا پوچھا گیا ہے کہ متضاد الفاظ جو ہیں وہ لکھیے۔ عزیز طلباء، آپ کو معلوم ہوگا کہ متضاد جو ہے وہ ضد کی جمع ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا کہ وہ نیک شخص، وہ نیک آدمی کس کس طرح سے اپنی دولت میں سے کیسے کیسے یتیم لوگوں، مسکینوں، محتاجوں پر خرچ کرتا تھا، کس طرح سے مدرسوں میں وہ اپنی دولت میں سے حصہ ڈالتا تھا، کس طرح اس نیک شخص کی دولت سے شفا خانے چلتے تھے، کس طرح سے دوا کا انتظام ہوتا تھا، لیکن خود جو ہے وہ اپنے اوپر بہت کم اس دولت میں سے خرچہ کرتا تھا، کیونکہ وہ جو دولت اس کے پاس تھی، اس نیک آدمی کے پاس تھی، اس دولت کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک امانت سمجھتا تھا۔ تو آئیے ہم جو اقتباس ہم نے مطالعہ کیا ہے اس میں جو کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی ضد جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح سے پہلا لفظ ہے کنجوس۔ کنجوس کا ضد آپ کو معلوم ہے کہ سخی کو کہا جاتا ہے۔ مشہور ہو گیا، جو سب جگہ بہت مشہور ہوگا، اور اس کی ضد جو ہے وہ گمنام جو ہے ہوتا ہے، جس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو اسے گمنام کہا جاتا ہے۔ دوست حبیب، دوست کا جو ضد ہے اسے ہم دشمن کہتے ہیں۔ چھپ چھپ کر، کھلم کھلا۔ مستحق کا ضد جو ہے ہم غیر مستحق کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے عزیز طلباء، اگلا سوال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ لوگ اس نیک آدمی کو کنجوس مکھی چوس کیوں کہتے تھے؟ عزیز طلباء، آپ نے پورے سبق کا مطالعہ کیا، آپ نے پورے سبق کو پڑھا، آپ کو پتہ چلا کہ نیک شخص کیوں اسے دوست احباب جو تھے
वो कंजूस मक्खी चूस के नाम से पुकारते थे और मुख्तलिफ अलकाबात देते थे, मुख्तलिफ नामों से मशहूर करते थे। इसलिए करते थे कि वो नेक शख्स जो है वो अपनी दौलत में से छुप छुपाते उन लोगों की मदद करता था जो मुस्तहीक लोग होते थे, जिन लोगों की जैसे मस्कीनों, मोहताजों और गरीबों की मदद करता था, लेकिन छुप छुप कर, किसी को कानून कान खबर नहीं होती थी। तो बिल आखिर दौलत होने के बावजूद दोस्तों ने, अहबाबों ने उस नेक शख्स को कंजूस मक्खी चूस के नाम से मशहूर कर दिया, मगर वो कंजूस मक्खी चूस नहीं था, बल्कि वो बहुत ही सखी और नेक किस्म का शख्स था। इसीलिए वो अपनी दौलत में से बहुत कम खर्चा अपने ऊपर करता था, बहुत ही कम कीमत के कपड़े पहनता था, बहुत ही सादा ज़िंदगी बसर करता था। खाने के वक्त एक हंडिया में अगर खाना बनता तो 3 वक्त का इंतज़ाम हो जाता था, और वो इस तरह से बहुत ही सादगी के साथ अपना गुज़र बसर करता था। लेकिन लोग उसे समझते थे कि शायद ये कंजूस मक्खी चूस हैं, लेकिन वो कंजूस मक्खी चूस नहीं था। इसी वजह से लोग उसे कंजूस मक्खी चूस करके नाम से पुकारा करते थे। आपने वो पैराग्राफ पढ़ा अजीज़ तुलबा, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सवाल नंबर 4 का जवाब आप खुद अपनी नोटबुक पर लिखेंगे कि इस इक़्तिबास में क्या कहा गया है, जो इक़्तिबास हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया, और उस इक़्तिबास का जो मुहासिल है वो अपने अल्फाज में आप तहरीर फरमाएंगे। अजीज़ तुलबा व तालिबात, जिस तरह से आपकी मश्की सवालात में से सवाल नंबर 6 जो है, फ़र्ज़ करें कि हॉकी स्टिक लगने से आपका साथी बेहोश हो गया, आप और दीगर लड़कों ने उसके साथ हमदर्दी की, वो हाल उसके बाप की खिदमत एक ख़त की सूरत में तहरीर करें। इस सवाल को हम आगे पढ़ेंगे। आगे एक नमूना जो है मैंने आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी के लिए जो है वो लाया है, और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए आज जो आपके सबक में थोड़ा ग्रामर का जो हिस्सा है, हम उसे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। अजीज़ तुलबा, पहला ही जो हरूफ है वो हरूफ इत्तफ़ है। हरूफ इत्तफ़ का तारुफ किस तरह से हम करते हैं? ये वो हरूफ है जो 2 इस्मों, 2 फ़ेलों, 2 जुमलों को आपस में मिलाते हैं। ऐसे हरूफ जो 2 इस्मों, 2 फ़ेलों, 2 जुमलों को आपस में मिलाते हैं, उन्हें हम हरूफ इत्तफ़ कहते हैं। मसलन मोहम्मद अकरम और मोहम्मद असलम स्कूल जा रहे हैं। मोहम्मद अकरम के दरमियान और मोहम्मद असलम के दरमियान और लफ्ज़ जो है हरूफ इत्तफ़ है। ज़ैद आया और अहमद गया। ज़ैद और अहमद 2 इस्म हैं, और बीच में जो है वो हरूफ इत्तफ़ है, यानी 2 इस्मों को जिस हरूफ ने मिलाया उसे हम हरूफ इत्तफ़ कहते हैं। पहले जुमले में और 2 इस्मों को मिलाता है, जबकि दूसरे जुमले में भी और ही 2 जुमलों को मिलाता है। अजीज़ तुलबा, आप इन हरूफ को ज़हनशीन करें और वो फिर करके सब जो हैं वो हरूफ इत्तफ़ के ज़ुमरे में आते हैं। इसी तरह से दूसरा हरूफ इल्लत, हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हरूफ इल्लत किसे कहा जाता है? हरूफ इल्लत कोई सबब, कोई इल्लत को ज़ाहिर करने वाले हरूफ जो होते हैं उन्हें हरूफ इल्लत कहा जाता है। मसलन इसलिए, लिहाजा, बिना, क्योंकि, ताकि, सो हरूफ इल्लत कहलाते हैं। अजीज़ तुलबा, हरूफ अगला जो है वो हरूफ ताज्जुब और इनबसात है। हरूफ ताज्जुब और इनबसात ऐसे हरूफ जो ताज्जुब या खुशी के मौके पर बोले जाते हैं। कोई ऐसा वाक़ा जिससे हम हैरान हो जाएं, या कोई ऐसी खबर जो खुशी के मौके पर दी जाए, और उन मौक़ों पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम हरूफ ताज्जुब व इनबसात कहते हैं। मसलन आहा, अल्लाहु अकबर, वाह वाह, ओहो। अजीज़ तुलबा, इसी तरह से हरूफ इस्तदारक
किसे कहा जाता है? हरूफ इस्तदारक वो हरूफ होते हैं जो शक या शुबे को दूर करने के मौके पर बोले जाते हैं, उन्हें हम हरूफ इस्तदारक कहते हैं। मसलन पर, लेकिन, मगर, इला, अलबत्ता हरूफ इस्तदारक कहलाते हैं। अजीज तुलबा व तालिबात, इसी तरह से आगे हरूफ शर्त के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हरूफ शर्त व जज़ा किसे कहा जाता है। हरूफ शर्त व जज़ा वो हरूफ होते हैं जो जुमले में किसी शर्त के मौके पर बोले जाते हैं। जब हम कोई शर्त या जुमला बोलें उस वक़्त पर जो अल्फाज बोले जाते हैं उन्हें हम हरूफ शर्त व जज़ा कहते हैं। मसलन वो हरूफ जो जुमले में शर्त के मौके पर बोले जाएं, मसलन कौन कौन से हरूफ हैं? जैसे अगर, जो, चूंकि, नहीं तो, वरना, वगरना, अगरचे, हरचंद। इसी तरह से हरूफ तनबीहा किसे कहा जाता है? कौन से हरूफ होते हैं जिन्हें हम हरूफ तनबीहा के ज़ुमरे में लाते हैं? वो हरूफ जो किसी को डराने, धमकाने, मना करने या खबरदार करने के मौके पर बोले जाते हैं, मसलन खबरदार, देखो, सुनो वगैरह। आइए अब हम थोड़ी सी मश्क करते हैं। नीचे जो दिए गए जुमले हैं इनमें से हम हरूफ अतफ, हरूफ इल्लत, हरूफ ताजुब इनबसात और हरूफ इस्तदारक और हरूफ तंबिया को तलाश करते हैं। आपका हुक्म मिला, लिहाजा में हाजिर हो गया। आपने देखा लिहाजा कौन सा हरूफ है जिसे हरूफ इल्लत कहा जाता है। कहना आसान है मगर करना मुश्किल है। मगर जो है वो हरूफ इस्तदारक की ज़ुमरे में आता है। उसको बहुत समझाया पर उसने एक ना मानी। इस जुमले में पर जो है वह हरूफ इस्तदारक के ज़ुमरे में आता है। खबरदार फिर ऐसा न हो। अगले जुमले में जिस तरह से खबरदार किया गया है तो खबरदार फिर ऐसा न हो हरूफ तनबीहा कहलाता है। ज़हे नसीब, पांचवा जुमला जो है ज़हे नसीब वो कामयाब हो गया। आपको मालूम है कि ज़हे नसीब जो है वो हरूफ ताजुब व इनबसात की ज़ुमरे में आता है। वो बदचलन नहीं अलबत्ता फजूल खर्च है। इस जुमले में छठे जुमले में अलबत्ता जो है हरूफ इस्तदारक के ज़ुमरे में आता है। चूंकि वो मेहनत नहीं करता इसलिए फेल हो गया। इस जुमले में चूंकि हरूफ शर्त व जज़ा कहलाता है। हरूफ शर्त व जज़ा कहलाता है। ओहो बहुत देर हो गई। ओहो जो है वो हरूफ ताजुबो इनबसात में के ज़ुमरे में आता है। माशा अल्लाह आप हरफन मौला है, मौला हैं। माशा अल्लाह भी हरूफ ताजुब व इनबसात में आता है। देखो वो जाने नहीं देगा। देखो जो है वो हरूफ तनबीहा में आता है। अजीज़ तुलबा व तालिबात, इस तरह की मश्क जो हैं वो ज़रूर आप करें जिससे आपकी मज़ीद जो है वो जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो आइए हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं।
अजीज़ तुलबा, जैसे मैंने आपको कहा था कि पीछे एक सवाल है जो आपके मश्की सवाल में है, जिसमें पूछा गया है कि फ़र्ज़ करें हॉकी स्टिक लगने से आपके साथी बेहोश हो गया, आप और दीगर लोगों ने उसके साथ जो हमदर्दी की वो हाल उसके बाप की खिदमत में एक ख़त की सूरत में तहरीर करें। आपका ये सवाल मैंने एक आपकी आसाइश के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर हल कर दिया है। जिस तरह से ख़त का आगाज़ कैसे किया जाता है, सवाल में पूछा गया है कि आपका एक साथी हॉकी स्टिक लगने की वजह से बेहोश हो गया, आप और आपके दूसरे साथी जो हैं वो उसके साथ उस वक़्त में जब वो हॉकी की स्टिक लगने से ज़ख्मी हो जाता है तो क्या हमदर्दी करते हैं, वो एक ख़त की सूरत में आपने वो सारी सूरत हाल अपने साथी के वालिद मुहतरम को एक ख़त की सूरत में लिखना है। तो आप आगाज़ करेंगे अज़ीज़ तुलबा, मोहतरम चाचा जान आदाब करके, और ठीक यहाँ से हम सब खैरियत से हैं। सबसे पहले अपनी खैरियत के बारे में चाचा जान को आगाह करेंगे। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहते हैं और उसके बाद चाचा जान की खैरियत जो है जानने की कोशिश करेंगे। अहवाल यूँ है कि आपका बेटा राकेश, जो मेरा बहुत गहरा दोस्त है, खेलते खेलते हॉकी की स्टिक लगने से बेहोश हो गया था। मैंने और दूसरे दोस्तों ने मिलकर उसे पानी और जूस वगैरह पिलाकर होश में लाया और फिर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने अच्छी तरह से मुआयना किया, यानी आपका बेटा हॉकी खेलते खेलते हॉकी स्टिक लगने से बेहोश हो गया था। हम सारे साथियों ने मिलकर आपके बेटे को जूस पिलाया, आपके बेटे को पानी पिलाकर उसे होश में लाया और उसके बाद हम डॉक्टर के पास इलाज व मुआलजे के लिए ले गए। डॉक्टर ने अच्छी तरह से तफ्तीश की, मुआयना किया और इसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। आप वालिद चाचा जान को उनके बेटे की ये हालत भी ज़ाहिर करनी ज़रूरी है कि अब उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ये कहकर उसने आमिर को फारिग कर दिया। अब वो बिल्कुल सेहतियाब है, इसलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने राकेश को फारिग कर दिया और बिल्कुल सेहतियाब, वो अब बिल्कुल सेहतियाब हैं, इसलिए आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व आदाब, आपका अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम करके आप ख़त को ख़त्म कर सकते हैं। ये एक नमूना है, आप इससे इस्तिफ़ादा जो है वो कर सकते हैं। आइए हम आगे जानने की कोशिश करें कि आपकी मश्की सवालात में और क्या बाकी है। आपका मश्क जो है वो यहीं पर मुकम्मल होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये मुनासिब समझा अज़ीज़ तुलबा, हम इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में हमने दूसरे सबक को पढ़ा जिनका नाम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन है। मैं चाहती हूँ कि आपको मज़ीद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की शख्सियत के बारे में कुछ जानकारी देना यहाँ पर मुनासिब समझा, तो मैंने थोड़ी सी जानकारी जो है उनके बारे में आपके लिए हाजिर की है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बरे सगीर की उन अजीम और हमजहत शख्सियात में से शुमार होते हैं जिन्होंने इल्म, इखलाक, तालीम और कौमी खिदमत के मैदान में गहरे और देर पानकोश छोड़े हैं। उनकी शख्सियत इल्म व अमल, सादगी व विकार, असूल पसंदी की हसीन इम्तजाज है। आपने हालात ज़िंदगी भी पढ़ी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब की। अब बतौर शख्सियत हम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बरे सगीर में, पूरी आलमी दुनिया में बहुत ही बड़ी, बहुत ही अजीम शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ही हमजहत शख्सियत में शुमार होते हैं, जिन्होंने इल्म के लिए, इखलाक के लिए, तालीम के लिए और कौम की खिदमत के लिए
इतना काम किया जिसके नकूश आज तक हमें पढ़ने को मिलते हैं। देर पा नकूश छोड़े आज भी जो हैं वो किताबी सूरत में हमारे यहाँ मुताले में मिलते हैं। उनकी शख्सियत इल्म व अमल, सादगी व वक़ार, उसूल पसंदी का एक हसीन इम्तजाज है। उनकी शख्सियत में इल्म व अमल, इल्म और उस पर अमल, सादगी और वक़ार, इज़्ज़त के साथ सादगी भी, उनकी ज़िंदगी सादगी पर मुनस्सिर थी और वो असूल पसंद भी थे। इन तीनों इल्म व अमल, सादगी व वक़ार और असूल पसंदी का एक खूबसूरत इम्तजाज है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब, उनके यहाँ इल्म दोस्ती भी थी। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की शख्सियत का सबसे नुमायां पहलू इल्म दोस्ती था। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब की शख्सियत जो है, इनका सबसे जो ज़ाहिरी पहलू था वो इल्म दोस्ती का था। वो इल्म को महज रोज़गार का ज़रिया नहीं बल्कि इंसान साजी का मुअस्सर वसीला समझते थे। वो इल्म को न सिर्फ रोज़गार के लिए ज़रूरी समझते थे कि इल्म हासिल करना सिर्फ रोज़गार ही के लिए है, बल्कि वो इंसान की खिदमत के लिए एक मुअस्सर वसीला समझते थे। अज़ीज़ तुलबा, उनके नज़दीक तालीम का मकसद क्या था? उनके नज़दीक तालीम का मकसद इंसान की किरदार, इंसान की सूझबूझ, इंसान की किस तरह से अखलाकियात संवारी जा सकती है वो थी। इसलिए वो निसाबी तालीम के साथ साथ, यानी जो हमारे सलेबस में, जो हमारे निसाब में तालीम है, उसके साथ साथ वो इखलाकी तरबियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब निसाबी तालीम के साथ साथ हमारी इखलाकियात को भी बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे। अज़ीज़ तुलबा, अगला जो अहम पहलू है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब की शख्सियत का, वो उनकी सादगी और उनकी इनअक्सारी है। उनकी तबीयत में कितनी नरमी थी वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उनकी शख्सियत में सादगी, इनअक्सारी थी। आला ओहदों पर फाइज रहने के बावजूद उनकी तर्ज ज़िंदगी में कोई तकल्लुफ़ या नमूद व नुमाइश न थी। वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। तुलबा उसातिज़ा से मोहब्बत और एहतराम का बर्ताव करते थे और हमेशा दूसरों की बात गौर से सुनते थे। अज़ीज़ तुलबा, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की शख्सियत का एक अहम पहलू जिसे जानना हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, वो उनकी सादगी और इनकसारी है। यानी सादगी और नरमी कितनी उनकी शख्सियत में कूट कूट कर भरी थी और वो इतने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे। सदर जमहूरिया हिंद तक वो पहुँचे। आपने पढ़ा उसके बारे में कि कौन कौन से ओहदे उन्होंने कब कब लिए और बिल आखिर वो सदर जमहूरिया हिंद भी बने। वो इतने बड़े ओहदों पर फाइज रहने के बावजूद उनकी ज़िंदगी जो है वो पुरतकल्लुफ़, वो उनकी ज़िंदगी में कोई तकल्लुफ़ नहीं था, कोई नमूदो नुमाइश नहीं थी। वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे और ख़ुसूसी तौर पर तुलबा के साथ, उसातिज़ा के साथ बहुत ही मोहब्बत और एहतराम से पेश आते थे। और अगर उनके पास तुलबा या उसातिज़ा आ जाएं तो उन्हें उनकी बातों को हमेशा गौर से सुनते थे और तवज्जो भी देते थे। अब एक अहम पहलू जो उनकी ज़िंदगी का है, उनकी शख्सियत का है, वो असूल पसंदी का है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एक असूल पसंद और बाकिरदार इंसान थे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब जो हैं वो एक असूल पसंद थे और बाकिरदार इंसान थे। दयानतदारी, सच्चाई, फ़र्ज़ शनासी, सच बोलने के आदी, अपने काम के तय दयानतदारी से काम करना और अपना फ़र्ज़ पहचानने के उनके किरदार के बुनियादी 3 सुतून हैं। वो नज़रियात पर मजबूती से कायम रहते थे
اور کسی بھی قسم کے دباؤ یا لالچ کو خاطر میں نہ لاتے، ان کی یہی صفت انہیں ایک مثالی رہنما بناتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی ایک اور اہم خوبی جو ہمیں جاننی ضروری ہے وہ عزیز طلباء کیا ہے؟ وہ ہے ان کی اصول پسندی۔ وہ اپنے اصول پسند اور بہت ہی باکردار انسان تھے۔ ان کی شخصیت میں دیانتداری، سچائی، فرض شناسی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ ان کے نظریات جو بھی نظریات تھے وہ مضبوطی سے ان پر قائم رہتے تھے اور کسی قسم کا دباؤ، کسی قسم کی لالچ وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یہی ایک بہت بڑی صفت ہے عزیز طلباء جو انہیں ایک مثالی رہنما بناتی ہے، ایک بہت بڑا جو آج تک ان کی رہنمائی کی مثال پیش نہیں کر سکا ہے۔ ایسی مثال جو ہے وہ ان کے کردار میں ہے۔ وہ اتنے اصول پسند، وہ اتنے دیانتدار، وہ اتنے سچے، وہ اتنے فرض شناس انسان تھے۔ ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو قومی یکجہتی بھی تھا۔ ان کی شخصیت میں قومی یکجہتی اور رواداری کا جذبہ بھی موجود تھا۔ ہر جگہ نمایاں نظر آتا ہے۔ قومی یکجہتی اور رواداری کا جذبہ جو ہے وہ ظاہر ہے۔ وہ مختلف مذاہب، زبانوں اور تہذیبوں کے احترام کے قائل تھے اور سمجھتے تھے کہ قوم کی ترقی باہمی احترام اور اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ ان کے خیالات میں تنگ نظری کے بجائے وسعت اور ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ عزیز طلباء، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی شخصیت میں ایک اہم پہلو وہ یہ بھی ہے کہ وہ قومی یکجہتی کے قائل تھے۔ قومی یکجہتی اور رواداری کا جذبہ جو ہے وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ وہ مختلف مذاہب کو، مختلف زبانوں کو، مختلف تہذیبوں کا احترام کے قائل تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قوم کی جو ترقی ہے وہ صرف باہمی احترام اور اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ ان کے خیالات میں تنگ نظری کے بجائے وسعت اور ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ ایک اور پہلو جو ان کی شخصیت میں نمایاں نظر آتا ہے وہ ہے فکری خدمات۔ عزیز طلباء، ڈاکٹر ذاکر حسین ایک مدبر، ایک مفکر، ایک مصلح بھی تھے۔ انہوں نے تعلیمی اور سماجی مسائل پر گہری غور و فکر کے بعد اپنی رائے پیش کی۔ ان کی تحریروں میں اور تقاریر میں فکری گہرائی، زبان کی شائستگی اور مقصدیت صاف جھلکتی ہے۔ وہ نوجوانوں کو محنت، نظم و ضبط اور خود اعتمادی کا درس دیتے تھے۔ عزیز طلباء، ڈاکٹر ذاکر حسین ایک بہت ہی مدبر، بہت ہی مفکر، ان کی سوچ میں بہت عمدہ فکر تھی۔ وہ بہت بڑے اصلاح کرنے والے تھے۔ انہوں نے تعلیمی، سماجی مسائل پر بڑی گہری غور و فکر کرنے کے بعد اپنی رائے پیش کی ہے۔ ان کی جو تحریریں ہیں، جو انہوں نے تحریریں لکھی ہیں، جو انہوں نے تقریریں کی ہیں، ان میں فکری گہرائی، زبان کی صفائی، زبان کی شائستگی اور مقصدیت جو ہے عزیز طلباء صاف جھلکتی ہے۔ وہ نوجوانوں کو ایک پیغام دیتے تھے کہ محنت اور نظم و ضبط اور خود اعتمادی کا درس بھی دیتے تھے۔ مقصدیت۔ عزیز طلباء، ہم ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی شخصیت کا خلاصہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی شخصیت علم و اخلاق، سادگی و وقار اور خدمت خلق کی روشن مثال ہے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم معلم تھے اور وہ ایک رہنما بھی تھے، بلکہ ایک ایسے انسان بھی تھے جن کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی شخصیت آج بھی طلباء کی محنت، کردار سازی، قوم کی خدمت کا پیغام دیتی ہے۔ مختصراً عزیز طلباء، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب
جو ہیں ان کی شخصیت میں اخلاق، سادگی، خدمت خلق جو ہے وہ جھلکتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑے عظیم معلم تھے، بہت بڑے رہنما تھے، اور سب سے اچھی بات ہے کہ وہ بہت اچھے انسان تھے جو آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے، اور ان کی شخصیت میں آج بھی طلباء کے لیے ایک محنت، کردار سازی، قوم کی خدمت کا ہمیں پیغام ملتا ہے۔ عزیز طلباء، آج آپ نے سبق نمبر 2 یعنی آخری قدم کو سبق نمبر 2 کا ہم نے آج لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے، لاسٹ نشست پڑھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ سبق نمبر 2 جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ شکریہ۔